वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश की बुक का लेसन 8 जिसका नाम है हरियाली तीज। तो चलिए लेसन 8 शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द वुमेन डूइंग इन द पिक्चर? इसका आंसर है वुमेन आर डांसिंग एंड सिंगिंग। कैन यू गेस देयर मूड फ्रॉम द क्लोथ्स दे आर वियरिंग एंड देयर फेशियल एक्सप्रेशंस? इसका आंसर है दे लुक वेरी हैप्पी। व्हाट डू यू थिंक इज़ द ओकेशन? इसका आंसर है द ओकेशन इज़ द फेस्टिवल ऑफ हरियाली। कैन यू नेम सम अदर ओकेजन्स वेयर पीपल गेट टुगेदर एंड डांस? इसका आंसर है पीपल गेट टुगेदर एंड डांस ऑन होली, रामनवमी एंड जन्माष्टमी। हम करते हैं ये लेसन रीड। Shravan, commonly called Sawan, is the month of rains. In this month, the festival of Haryali Teej is celebrated to welcome the rainy season. Haryali means greenery and Teej means the legend. It is celebrated as the day of Lord Shiva and Parvati. This festival is also a sign of growth, prosperity and greenery all around. It strengthens and the bond of love and happiness in married life. After the first shower of Sawan, the weather becomes cool and pleasant, the soil turns loose and soft, new plants start growing and there is greenery all around. A small red insect called Teej comes out from the earth's surface. All men, women and children feel happy and cheerful. People wear new and colorful clothes on this day. Girls sing folk songs and enjoy rides on the swings. They apply mehendi on the hands and wear colorful bangles. Women worship goddess Parvati. Boys fly kites. The scene at home is equally festival. Gulgulas, sohalis, puras and many other tasty dishes are prepared on this occasion. Parents give gifts and sweets like ghevar and feni to their married daughters. People celebrate this festival with zeal and enthusiasm. Many fairs and games are organized on this occasion. To celebrate this festival, swings are set up in the common open courtyards. Children go to the fairs with their friends and family members. A large crowd is in colorful clothes gathers in the fair. There is a lot of hustle and bustle. Many stalls are set up. The vendors sell balloons, toys, bangles, dresses, and sweets. Children buy balloons, kites, flutes, toy cars, etc. They enjoy flying kites to different colors, shapes, and sizes. The sky is overcast with these kites, and children are heard shouting Vokata when a kite is snapped off. Women buy bangles, other items, and enjoy rides. Many people, young as well as old, come to the fair from far and wide. Some come there to take part in wrestling and kabaddi matches, while many others come simply to watch and enjoy them. Winners get prizes. After the whole day of enjoyment, people return to their homes. अब हम करते हैं इस लेसन की हिंदी ट्रांसलेशन। श्रवण, जिसमें आमतौर पर सावन भी कहा जाता है, वर्षा का महीना है। इस महीने में वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली का अर्थ है हरापन और तीज का अर्थ है महीने का तीसरा दिन। पौराणिक कथा के अनुसार इसे भगवान शिव और पार्वती के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार चारों ओर विकास, खुशहाली और हरियाली का भी सूचक है। यह त्यौहार वैवाहिक जीवन में प्रेम और प्रसन्नता के बंधन को मजबूत बनाता है। सावन में पहली बौछार के बाद मौसम शीतल और सुहावना हो जाता है। मिट्टी नर्म और मुलायम हो जाती है। नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। तीज नाम का एक छोटा सा लाल कीट धरती की सतह से बाहर आ जाता है।
सभी पुरुष, स्त्रियां और बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इस दिन लोग नए और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। लड़कियां लोकगीत गाती हैं और झूलों की सवारी का आनंद लेती हैं। वे अपने हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती हैं। स्त्रियां देवी पार्वती की पूजा करती हैं। लड़के पतंग उड़ाते हैं। घर का रंग ढंग भी समान रूप से उल्लासपूर्ण होता है। इस अवसर पर गुलगुले, सुहालियाँ, पूड़े और बहुत से दूसरे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। माता पिता अपनी विवाहित पुत्रियों को उपहार और घेवर और फैनी आदि मिठाइयाँ देते हैं। लोग इस त्यौहार को उत्साह और उमंग से मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने के लिए कई मेलों और खेलों का आयोजन किया जाता है। खुले अंगनों में झूले लगाए जाते हैं। बच्चे अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ मेले में जाते हैं। मेले में रंग बिरंगे कपड़े पहने बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। वहाँ बहुत धक्का मुक्की होती है। कई स्टॉल लगाई जाती हैं। खुली दुकानें लगाने वाले फेरी वाले गुब्बारे, खिलौने, चूड़ियाँ, कपड़े और मिठाइयाँ बेचते हैं। बच्चे गुब्बारे, पतंग, बांसुरियाँ और खिलौने, कारें आदि खरीदते हैं। वे विभिन्न रंगों और आकारों की पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। आकाश इन पतंगों से घिर जाता है और जब कोई पतंग काटी जाती है तो बच्चे वो काटा की आवाज़ में चिल्लाते हुए सुनाई देते हैं। स्त्रियां चूड़ियाँ और दूसरी चीज़ें खरीदती हैं और झूला झूलने का आनंद लेती हैं। बहुत से लोग, नौजवान और बूढ़े, दूर दूर से मेले में आते हैं। कुछ वहाँ कुश्ती और कबड्डी के मैचों में भाग लेने के लिए आते हैं, जबकि दूसरे बहुत से लोग केवल उन्हें देखने और उनका आनंद लेने के लिए आते हैं। विजेताओं को इनाम मिलते हैं। सारा दिन मनोरंजन के बाद लोग अपने घर लौट आते हैं। अब हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। तो सेलिब्रेटेड का मतलब होता है डिड समथिंग एन्जॉयबल। इंसेक्ट का मतलब होता है स्मॉल एनिमल। प्लीजेंट का मतलब होता है एन्जॉयबल। लीजेंड का मतलब होता है स्टोरी। डिशेस का मतलब फूड आइटम्स। ओकेजन का मतलब अ पर्टिकुलर टाइम। हस्टल एंड बस्टल यानी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। शावर यानी रेन। फेस्टिव यानी जॉयफुल। वेंडर्स यानी पर्सन्स हु सेल थिंग्स इन द स्ट्रीट। स्नैप्ड यानी कट। अब हम करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है कंप्रहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हेन इज तीज सेलिब्रेटेड? इसका आंसर है तीज इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड डे ऑफ द मंथ ऑफ सावन। वट इज द लीजेंड अबाउट तीज? इसका आंसर है द लीजेंड अबाउट तीज इज दैट it is celebrated as the day of Lord Shiva and Parvati. What changes do you see in nature after the first shower of the rain in the month of Sawan? इसका आंसर है the weather becomes cool and pleasant, new plants start growing and there is greenery all around. How do people celebrate Teej? List the activities that people enjoy doing on this day. इसका आंसर है on the day of Teej people wear new and colorful clothes. Girls apply mehendi on their hands, wear colorful bangles and enjoy rides on swings. Boys fly kites. What dishes are prepared on Teej? इसका आंसर है गुलगुलास, सुहालीज, पूराज and many other tasty dishes are prepared on Teej. Name some items that children like to buy in the fair. इसका आंसर है children like to buy in the fair balloons, kites, flutes and toys, cars, etc. अब यहाँ पे आपको इस पाठ की हिंदी दिखाई गई है। सेकंड है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट ट्रू फॉल्स, T for true and F for false in the boxes. Rains make the weather cool and pleasant. ये true है। Both boys and girls sing folk songs and enjoy rides on the swings. False. Boys apply mehendi on their hands. False. Parents give gifts and sweets to their son and daughters. ये भी false है। The sky is overcast with kites.
true. Everyone takes part in wrestling and kabaddi matches. False. The Tej fair is full of noise and fun. True. Next है vocabulary. Make meaningful words from the jumbled letters given below. One has been done for you. तो यहाँ पे आपको जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उनको सही करके एक वर्ड बनाना है। जैसे फर्स्ट होगा रेन, सेकंड होगा ग्रीड, ग्रेट, थर्ड होगा स्विंग्स, फोर्थ होगा इंजॉय, फिफ्थ होगा वेंडर्स, सिक्स्थ होगा फ्लूट्स, सेवन्थ होगा सेलिब्रेट, एट्थ होगा रिटर्न्स, नाइन्थ होगा यंग, टेंथ होगा बैंगल्स। फिर नेक्स्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इट इज़ वेरी कूल इन द शेड वाइल इट इज़ वेरी हॉट इन द सन। अ कोकोनट इज सॉफ्ट इनसाइड बट इट इज़ वेरी हार्ड आउटसाइड। माई स्कूल ओपन्स एट 8 AM and closed at 2:30 PM. A neat and clean place looks pleasant, while a dirty place looks unpleasant. His trousers are loose at the bottom but tight at the top. After the match, the winners were happy, while the losers were unhappy. Highways are wide, whereas streets are narrow. An aeroplane, which is generally very large, appears very small in the sky. Third है read the following twin words hustle and bustle, far and wide. These twin words always go together and add great emphasis to what we want to say. Choose from the list below a word from twin words from the following. तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं, आपको इनको सही जगह पुट करना है। जैसे अप्स एंड डाउन्स, सन एंड शावर, डे एंड नाइट, नियर्स एंड डियर्स, thick and thin, here and there, bread and butter, spick and span, by hook or by crook. फिर नेक्स्ट आता है name of some festivals are hidden in the grid, identify and circle them, one has been done for you. तो यहाँ पे आपको फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं, आपको इस ग्रिड में से फेस्टिवल्स के नाम को फाइंड करना है और उन पे सर्कल करना है। जैसे ईद, क्रिसमस, दिवाली, दशहरा, बैसाखी, पोंगल। नेक्स्ट है ग्रामर। क्लासीफाई द वर्ड्स इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनमें से नाउन और एडजेक्टिव को बताना है कि क्या नाउन है क्या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन होगा तीज, बैंगल्स, क्लोथ, हरियाणा, चिल्ड्रन, बैलून्स, प्लांट्स, सुहालीज। और एडजेक्टिव होगा ओल्ड, रेनी, हैप्पी, कलरफुल, बिग, स्वीट, प्लीजेंट, चीयरफुल। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ सावन द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट, द सॉइल टर्न्स loose and soft, new plants start growing, and there is a greenery all around. A small red insect called Tej comes out from the earth's surface. The verbs in the bold are in the simple present tense. The simple present tense is used first to express habits, जैसे he takes milk at breakfast, she goes for a morning walk daily. To express repeated actions or events, we go to school every morning. People wear new clothes on festivals. To express universal truth, water boils at 100 degrees Celsius. The sun rises in the east. Rules to change verbs in simple present tense. We form the present tense by adding s or es to the first form of the verb. If the subject is he, she or it or singular nouns and names, Rahul, Reema, etc. Otherwise, the first form of the verb is used. जैसे सब्जेक्ट I, you, we, they, इसमें वर्ब होगी learn. The rest of sentence होगा English at school. फिर नेक्स्ट he, she
इट राहुल रीमा, वर्ब होगी लर्न्स और रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा इंग्लिश एट स्कूल। When the subject of the sentence is third person singular, he, she, it, any name, the verb will change as shown below. When verbs end in o, ch, sh, double s, x or z or es is added to the first form of verb जैसे go, goes, wash, washes, fix, fixes, catch, catches, kiss, kisses, buzz, buzzes. Next है when verb end in y preceding a constant the y is replaced by i's। तो marry होगा marries, study होगा studies, carry होगा carries, worry होगा worries। Third, when verb end in y preceding a vowel s is added जैसे play plays, enjoy enjoys, say says। Now fill in the blanks with appropriate form of verbs in the bracket. Rajan lives in a village. I play kabaddi daily. We prayer in the morning assembly. The sun sets in the west. The farmer work in the fields. Next है rearrange the jumble words to make meaningful sentences। तो यहाँ पे आपको कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनको अरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट है, इसमें होगा ये सही सेंटेंस, श्रावण इज़ द मंथ ऑफ रेन्स। नेक्स्ट होगा गर्ल्स अप्लाई मेहंदी ऑन देयर हैंड्स। थर्ड होगा बॉयज़ फ्लाई काइट्स। फोर्थ होगा वुमेन वर्शिप गॉडेस पार्वती। फिफ्थ होगा मैनी स्टॉल्स आर सेट अप इन द फेयर। सिक्स्थ होगा देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड। फिर नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Listen to the Simran's account of how she celebrate Guru Purab and tick the correct options। तो when did Simran go to Gurudwara? इसमें आएगा today। Why did she go there? इसमें आएगा to offer prayers। Who blessed Simran? इसमें आएगा the Granthi। What kind of songs did Simran recite in the Gurudwara? इसमें आएगा होली सॉन्ग्स ऑफ गुरु नानक जी। व्हेन डिड शी कम बैक? इसमें आएगा इन द इवनिंग। नेक्स्ट है ईच फेस्टिवल इज़ नोन फॉर द स्पेशल एक्टिविटीज़ वी डू और द स्पेशल डिशेज वी प्रिपेयर। फर्स्ट लिस्ट द एक्टिविटीज़ दैट वी डू एंड डिशेज वी प्रिपेयर ऑन these festivals। नेक्स्ट वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द लिस्ट ऑफ दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे फेस्टिवल्स दिए गए हैं, आपको एक्टिविटीज़ और डिशेस यहाँ पे बतानी है। जैसे होली, इसमें एक्टिविटीज़ होगी प्लेइंग विद कलर्स, डांसिंग। डिशेस होगी पूरी, हलवा, स्वीट्स, पकौड़ाज। बैसाखी, एक्टिविटी होगी डांसिंग इन ग्रुप्स, बीटिंग ड्रम्स और डिशेस होगी स्वीट वाटर। रक्षाबंधन, गर्ल्स एंड वुमेन्स टाई राखी एंड अप्लाई तिलक टू ब्रदर्स। डिशेज होगी पूरी, हलवा, स्वीट्स। ईद, एक्टिविटी होगी मुस्लिम प्रे इन मस्जिद। डिशेज होगी स्वीट्स और सेवैयाँ। दशहरा, एक्टिविटीज़ होगी बर्निंग ऑफ द एफिगीज ऑफ रावण, मेघनाथ एंड कुंभकर्ण। इसमें डिशेज होगी पूरी, हलवा, स्वीट्स। दिवाली, लाइट्स एंड डेकोरेशन, फायरवर्क्स, लक्ष्मी पूजा। इसमें डिशेस होंगी पूरी, हलवा, स्वीट्स। क्रिसमस, इसमें एक्टिविटी होगी प्रेयर्स एंड वर्शिप्स इन द चर्च, गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन, क्रिसमस कैरल्स और इसमें डिशेस होंगी स्वीट्स। फिर नेक्स्ट है लुक एट द डायरी एंट्री of day 1 of class 5th student who had gone to Jaipur on a school trip। तो इसको में हम लिखेंगे September 19, 2000 जो भी है। फिर लिखेंगे we all arrived at Jaipur around 11 AM, went straight to the hotel
Amber on MI Road. After a light breakfast, we went to Amber Fort, had a ride on an elephant. It was fantastic. Then we saw the Jantar Mantar. It was brilliant. Around 1 pm, we came out and went to the hotel, had our lunch. In the evening, we all went to Hawa Mahal and Rambagh Palace. We went to Chokhi Dhani and had a nice experience of Jaipur trip. फिर नेक्स्ट है सपोज यू विजिटेड अ तीज फेयर इन योर विलेज और सिटी राइट अ डायरी एंट्री टू रिकॉर्ड द इवेंट्स एंड योर फीलिंग्स. जैसे रिमेंबर अ गुड डायरी एंट्री शुड बी इंक्लूड डे डेट डिटेल डिस्क्रिप्शन और कंटेंट्स should be written in first person. I went to the Tej fair. A diary entry doesn't need to be formal, it can be written in informal style. Use simple words and short sentences. तो यहाँ पे लिखेंगे मंडे मार्च 8 2000 जो भी है. I visited the Tej fair held outside our village. There was a great rush. Young boy and girls looked very happy. The girls were swinging, the boys were flying kites. Sweet shops, toy shops, and bangle shops were set up there. My elder sister bought colorful bangles. I bought toys for my younger brother and sweets for my parents. In the evening, we come back home. फिर नेक्स्ट करते हैं You wish to interview one of your class fellows on the following address: hobbies, favorite game, favorite festival, dishes, likes, dislikes, daily routine, favorite place, favorite TV program. Now frame the question that you may ask him or her to give the above information. One has been done for you. तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले Where do you live? I live in फरीदाबाद. What are your favorite hobbies? इसमें आएगा My favorite hobbies are reading and writing paintings. Which is your favorite game? इसमें आएगा My favorite game is hockey. Which is your favorite festivals? My favorite festivals are Diwali and Holi. What are your likes and dislikes? I like play football. What is your daily routine? A daily routine is a schedule of activities you do every day. Which is your favorite place in Haryana? इसमें आएगा कुरुक्षेत्र. Which is your favorite TV program? इसमें आएगा टॉम एंड जेरी. थर्ड अब हम करते हैं डिस्क्राइब एनी फेयर यू मे हैव विजिटेड. तो जहाँ पे आप किसी भी मेले में अगर गए हैं तो उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. जैसे आई विजिटेड द तीज फेयर हेल्ड आउटसाइड आवर विलेज. देयर वॉज अ रश. यंग बॉय एंड गर्ल looked very happy. The girls were swinging, the boys were flying kites. Sweet shops, toy shops, and bangle shops were set up there. My elder sister bought colorful bangles. I bought toys for my younger brother and sweets for my parents. In the evening, we come back home. फिर नेक्स्ट है follow up. Talk to your parents and teachers and find out the following information about the main festival of our country. Write them in the table given below. तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है मेन फेस्टिवल्स जो हैं हमारे उनके बारे में और इसको टेबल को कंप्लीट करना है.
जैसे सबसे पहले है 26 जनवरी, डे और डेट फेस्टिवल की है संडे 26/1/2025। वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, इसका आंसर है आवर कॉन्स्टिट्यूशन come into force on 26 January. Next है होली। होली is a festival of goodwill. बैसाखी 14 April. Yes, the harvest festival is celebrated in बैसाखी. Next है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण बर्थडे। ईद, ईद is a festival of hugs. Diwali, the festival of lights, 15th August, our country become independent, 5th Christmas Day, ये है 25th December, 25th December is a big day। नेक्स्ट हम करते हैं लेसन 8 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट, तीज इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड डे ऑफ द मंथ ऑफ, इसमें आएगा ऑप्शन ए सावन। क्वेश्चन 2, व्हाट डिशेज आर प्रिपेयर्ड ऑन तीज, इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी गुलगुला, सुहालीज, ये सभी। क्वेश्चन 3, हु अप्लाइज मेहंदी ऑन देयर हैंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी गर्ल्स। क्वेश्चन 4, पीपल लुक्स डैश ऑन हरियाली तीज, इसका आंसर है ऑप्शन ए हैप्पी एंड चीयरफुल। क्वेश्चन 5, डैश वियर कलरफुल बैंगल्स, इसमें आएगा ऑप्शन सी ए एंड बी, यानी गर्ल्स एंड वुमेन्स। क्वेश्चन 6, हु वर्शिप गॉडेस पार्वती, इसका आंसर है ऑप्शन बी वुमेन। क्वेश्चन 7, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर्स, तो यहाँ पे आपको जंबल लेटर दिए गए हैं, आपको यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं। जैसे पहला होगा रेन RAIN, नेक्स्ट होगा यंग YOUNG, फिर थर्ड होगा वेंडर्स VENDORS। क्वेश्चन 8, प्लेइंग विद कलर्स गुलाल्स वाटर गन्स आर रिलेटेड टू द फेस्टिवल ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होली। क्वेश्चन 9, गर्ल्स टाई राखी एंड अप्लाई तिलक टू ब्रदर्स ऑन द फेस्टिवल ऑफ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षाबंधन। क्वेश्चन 10, डैश इज द मंथ ऑफ रेन्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए सावन। फिर क्वेश्चन 11, हॉस्टल एंड बस्टल for the wide are the example of twin words, then write a word to form twin word, जैसे ups and downs, day and night। Question 12, boys fly dash on the occasion of तीज, इसका आंसर है ऑप्शन बी kite। Question 13, girls enjoy riding on the swings on the festival of, इसका आंसर है ऑप्शन ए तीज। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 9 डू योर बेस्ट करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।